hi to all the students and a very welcome back. Um, in this lecture, I'll be explaining you about climate change, and we will also understand that how climate change happens, what is sea level rise, global warming, and we'll also understand greenhouse effect and the various greenhouse gases that are responsible for climate change. And along with that, we will also understand about ozone layer and ozone depletion, or we can say in other words ozone hole. So we first of all start with the understanding of climate change, right? So climate change is related to pollution. So whenever we use the term climate change, we need to understand that it is ultimately related to pollution, because pollution is something that is apart from dust and other particles. It is also the release of gases, right? It is the more amount of gases that is present in the atmosphere that is causing pollution, right? So climate change is a term that is related to pollution. Now we need to understand first of all that what is greenhouse effect, right? So let us first of all know that it is a very natural process which is very important for earth to remain warm, right? अगर अर्थ को वार्म रखना है तो बहुत ज़रूरी है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, राइट? सो as I said, it is important to keep the earth's atmosphere warm for making it favorable for the growth of life forms. तो जो भी life forms present है अर्थ पे वो सब रह सके, राइट? उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म रहे, राइट? नाउ so the gases that causes greenhouse effect are the gases that is the carbon dioxide, nitrogen oxide, methane. These are some of the important greenhouse gases that causes greenhouse effect, right? Now let us understand the natural greenhouse effect that take place, right? So what happens is that our atmosphere, right, is in our atmosphere there are greenhouse gases present like this, right? So the carbon dioxide, nitrous oxide and methane. Now these greenhouse gases, they absorb sun's energy, the solar radiation, right? And this energy that is absorbed, right, some part of it is escapes into the space, whereas the some part is re-radiated, remains in the earth, right? So this solar radiation is very important for us, as these greenhouse gases, they absorb more, they absorb sunlight, so our earth remains warmer for us to stay, right? So this is a natural greenhouse effect, and this is important for the earth to happen, right? So for example, you need to understand that what is what we say greenhouse, right? Greenhouse is something that is usually constructed of glass, right? तो इस तरह का अरेंजमेंट आपने कहीं पे भी देखा होगा, लाइक नर्सरीज वगैरह में, राइट? तो एक्चुअल ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ लाइक ग्लास, सो सनलाइट एंटर्स इनसाइड एंड कीप्स द एनवायरनमेंट इनसाइड वार्म फॉर द प्लांट्स टू सर्वाइव. तो इसमें क्या होता है कि जो भी सनलाइट है वो एंटर करती है अंदर, राइट? और वो लाइट जो एंटर हुई उसकी वजह से अंदर का एनवायरनमेंट वार्म रहता है और प्लांट सर्वाइव करता है, राइट? सो दिस इज therefore called, this effect is therefore called a greenhouse effect, right?
You can also understand it by the example of a car getting heated, right? What happens that when you keep your car in the sun, the sun rays they enter inside because your car has windows, right? So through that glass the sun rays enter inside, but it is not able to completely escape out, and therefore your car becomes warmer when kept in sun. So this is a greenhouse effect. So this is a natural greenhouse effect phenomenon. Now see what happens. This is a human enhanced greenhouse effect. As you can see, because of various anthropogenic activities, various human activities like vehicles and industries, the amount of greenhouse gases has now increased. Here you can see it was the greenhouse gases were present in limited amount required for the earth to warm, and now in here there is more greenhouse gases that is formed because of our activities, and therefore now more heat will be trapped inside than needed. तो ये सब गैसेस का अमाउंट क्योंकि बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो अब अर्थ में ज़्यादा सन का रेस एंटर हो रहा है, राइट, एंड देयरफॉर देयर इज़ लाइक लेस हीट एस्केप इनटू द सन इनटू द स्पेस. तो ज़्यादातर जो भी हीट है वो अर्थ में ट्रैप होके रह रहा है, राइट, और जिसकी वजह से हमें हीट का एहसास होता है, राइट. तो वी कैन फील द हीट डेली बिकॉज नाउ द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस हैज़ इंक्रीज्ड in our atmosphere. So more the greenhouse gases, more will be the heat that is present on the earth, right. क्योंकि जितने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज होंगे उतना ज़्यादा वो हीट ट्रैप करेगा, राइट. तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट था, बट यहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट बढ़ गया है, जिसकी वजह से ऑन अ डेली बेसिस हीट इज़ गेटिंग ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर एंड वी आर फीलिंग दैट हीट, राइट. हम खुद महसूस करते हैं कि अब तक जो ईयर्स आए, जो ईयर्स गए, राइट, तो द अमाउंट ऑफ हीट हैज़ इंक्रीज्ड year after year, right. That is because of all our activities that is creating all these greenhouse gases. So what we need to understand is that greenhouse gases are important for the earth to keep warm, but this effect is like enhanced by human due to their activities, right, which increases more of these greenhouse gases. So I hope that greenhouse effect and greenhouse gases is clear with you people now. So what we need to understand is that climate change refers to significant long term changes in global climate. हमारा जो global climate है उसमें long term में क्या चेंजेस आ गए, ठीक है. लॉन्ग टर्म चेंजेस यानी कि लंबे समय में क्या चेंजेस आ गए पूरे ग्लोबल क्लाइमेट में, उसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, ठीक है. सो नाउ हाउ दिस हैपन्स, सी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हीट ट्रैप हुआ एटमॉस्फेयर में, हीट गेट्स ट्रैप ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस. नाउ दैट हीट इज़ व्हाट, हीट इज़ एक्चुअली एनर्जी, right. We have learned this in our previous standards also, that there is heat is energy, right. So whatever heat that is trapped is energy, and when you add energy to any system, changes is going to occur. तो किसी भी सिस्टम में जब आप एनर्जी डालोगे तो बदलाव ज़रूर आएगा, ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, अर्थ में हीट एनर्जी इंक्रीज़ कर रहे हैं. अब क्योंकि एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है तो अर्थ के सिस्टम में चेंजेस आना ऑब्वियस है.
Now, all systems in global climate system are connected. Adding heat energy causes the global climate to change as a whole. अब जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट की, तो वो एक सिस्टम है, ठीक है, एंड दैट होल सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स है, ऑल ऑफ द सिस्टम्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर. सो व्हेन यू ऐड हीट एनर्जी, तो ऑल द सिस्टम्स they pass through changes and this cause the global climate to change as a whole. तो हर एक सिस्टम में चेंज आता है जिसकी वजह से एज अ होल पूरे ग्लोबल क्लाइमेट में चेंज आता है. सो okay, these are the points that we are going to understand. So this statement we can understand from this diagram, which shows that, see, as the greenhouse gases are trapped in the Earth's atmosphere, so they trap energy, right? So therefore we have warmer temperature. So next consequence is warmer temperature. Now see what a warmer temperature can do. It can melt snow and ice, right? Warmer the atmosphere, warmer the temperature, warmer will be the oceans, right? There would be more evaporation, obviously, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो पानी का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, and this all these will also lead to changing conditions for plants and animals, क्योंकि environment change हुआ तो plants और animals के लिए भी conditions change होंगे, right? Now warmer oceans can lead to stronger storms. If you do not know, storms are related to wind and oceans. तो वार्मर ओशंस होंगे तो स्टॉर्म्स हो सकते हैं स्ट्रॉन्गर, सी लेवल राइज करेगा, राइट? एंड मेल्टिंग स्नो एंड आइस कैन लीड टू अर्थ एब्जॉर्बिंग मोर एनर्जी. सो जब आइस मेल्ट होता है तो वो वाटर बनता है और वाटर जो है वो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है? तो this will absorb more energy, which is again greenhouse gases leading to trap energy. Then changing conditions for plants and animals can lead to shifting ranges and migrations. Now see, as the plants and animals, their conditions of the environment will change, so they will start shifting, they will start to migrate from one place to another in search of their comfort. So a whole like biodiversity changes. Also there are changing seasonal patterns, so you will also find changes in seasons, right? And more evaporation means that water humidity is getting lost, which means that there would be more drought and there will be more wildfires, right? And more evaporation also means that there would be more precipitation in some places. More precipitation, by that we mean like there would be sometimes more snow, sometimes more rainfall in certain places. Now as this chart depicts, you can see that all of these are interrelated. See, melting snow ice is also related to sea level rise, is also related to the earth absorbing more energy. Melting snow ice is also related to changing conditions for plants and animals. More evaporation is also related to the same. Likewise, more evaporation is also related to stronger storms and more precipitation, right? And as you can see, the arrow depicts that each of these are related to each other. So each of these is a system and every system is getting changed due to this trapped energy. And since each of this system is getting changed, the whole global climate is changing as a whole, right? So this, the daily things that we experience, the droughts, the wildfires, the sudden rainfalls, the sudden snow, right, sudden storms, all of this are effects of climate change that has happened due to the trapped energy in the Earth's atmosphere, right? Now
we start with the understanding of greenhouse gases. So, as I told, greenhouse gases are carbon dioxide, methane, nitrous oxide, CFCs, and carbon monoxide. Though carbon monoxide is not actual a greenhouse gas, but carbon monoxide is something that enhances the effect of these four greenhouse gases. So I have included here. Otherwise, these four are the main greenhouse gases. Now we will understand each of these one after the another. The first is carbon dioxide, right? So we all know that this is the most abundant greenhouse gas in the atmosphere, right? अपने एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अमाउंट में अगर कोई गैस है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? बिकॉज so there is like this is about 60% of the greenhouse gases is carbon dioxide itself. Why? Because see, all of us are liberating carbon dioxide. हम जितने भी human beings हैं, we all are liberating carbon dioxide, right? हम ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करते हैं, और भी बहुत सारे सोर्सेज है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट इंक्रीज होता है, ठीक है? सो दिस इज़ लाइक अबाउट 60% ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. It has increased from pre-industrial times, that is 1750 AD. अब जो इंडस्ट्रियल प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स था, मतलब कि इंडस्ट्रियल टाइम से पहले का जो टाइम था, इनिशियल टाइम था, तब से वो इंक्रीज़ होने लगा, राइट? सो what we need to know is that these are removed or sequestered from atmosphere by plants. Now plants are called carbon sequesters. Why? Because plants are the only organisms that can take carbon dioxide from the atmosphere and convert it into and they use it for the process of photosynthesis, by which they prepare their food, right? And they release oxygen in the process. So plants are the sequesters of carbon dioxide. So only plants have the capability to remove it, right? So what are the main reasons for the increase in carbon dioxide? These are the fossil fuel burning, that is coal, natural gas, oil. So we know that there are like so many fuel burning, like there are so many power plants where all of these are converted, are used in one or another thing. So all these power plants, they liberate carbon dioxide. Then deforestation. Now as I said that plants are the only organisms that can remove carbon dioxide from the atmosphere. अब अगर deforestation ही कर देंगे, अगर plants ही निकाल देंगे, तो इस carbon dioxide को sequester कौन करेगा, right? So if plants are removed, deforestation is done, it is obvious that the organisms that are removing carbon dioxide from the atmosphere are no more present, and this will lead to an increase in the amount of carbon dioxide, because the carbon dioxide is not getting removed from the atmosphere by the plants. And another thing is change in land use. So by change in land use we mean that जैसे नॉर्मल फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट को पूरा कट करके और फिर वहाँ पे कुछ आपने लैंड को दूसरे यूज़ में डाला, जैसे कि वहाँ पे इंडस्ट्री बना दी या तो फिर वहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड बना दिया, तो आप लैंड को अब किसी और चीज़ में यूज़ कर रहे हो. वो लैंड जो प्लांट्स की वजह से वहाँ पे सेक्वेस्ट्रेशन हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा था, तो वो अब नहीं हो रहा, और वो एरिया को आप और कार्बन डाइऑक्साइड
प्रोड्यूस करने की जगह बना रहे हो, राइट. सो दिस इज कॉल्ड चेंज इन लैंड यूज. सो ऑल ऑफ दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ carbon dioxide. Now the next important gas, the greenhouse gas, is methane. So this methane is produced when organic matter decays under anaerobic condition. जब organic matter जो है, कोई भी organic matter जब decay होता है, right, वो भी एनएरोबिक कंडीशंस में, मतलब कि ऐसे कंडीशंस जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो दैट इज़ कॉल्ड एनएरोबिक कंडीशन एंड दिस लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन. तो अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑर्गेनिक मैटर डीके होता है तो वो मीथेन प्रोड्यूस करता है. ठीक है. नाउ दिस इज़ प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ incomplete decomposition by a group of bacteria called methanogens. अब methanogens are bacteria that produce methane. तो उनका नाम ही ऐसा है. By the name you can understand that methanogens are bacteria that produce methane, right? So hence they have been given the term methanogens. तो incomplete decomposition होता है क्योंकि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होता. सो देयरफॉर डिकम्पोजिशन तो हो रहा है बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है एंड दिस इज़ डन बाय बैक्टीरिया कॉल्ड मिथेनोजेंस. नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मीथेन इज़ राइजिंग एट अ रेट ऑफ 1% पर ईयर. हर साल 1% मीथेन इंक्रीज हो रहा है एंड between 1980 to 1990 about 15% of total warming is attributed to this gas alone. तो ये जो टाइम स्पेन था 10 इयर्स का, 1980 से लेके 90 तक, 15% टोटल वार्मिंग जो था, ग्लोबल वार्मिंग, वाज बिकॉज ऑफ दिस गैस इटसेल्फ. तो मीथेन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर 15% ऑफ टोटल ग्लोबल वार्मिंग. नाउ ड्यूरिंग प्री इंडस्ट्रियल लेवल, दैट इज 1750 AD, it was 750 ppb. ppb means parts per billion, राइट. तो तब उसका कॉन्सेंट्रेशन 750 ppb था एंड देन नाउ यू कैन सी द फिगर्स दैट इन 2000 AD it became 1750 ppb, which means that it has increased enormously during this time span. कहाँ 750 ppb था, वहाँ से it is more than 1000, more than like 1750 ppb, right? So what are the main reasons that leads to methane production? So one among them is freshwater wetlands. So wetlands जो होते हैं वो ऐसे एरिया हैं जो वाटर में सबमर्ज्ड है बट वहाँ पे वेजिटेशन है, राइट, बट क्योंकि वो वेटलैंड है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वाटर में कम होती है क्योंकि ये जो वेटलैंड्स होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है कम प्रेजेंट है बिकॉज दिस इज़ अ स्टेबल वेटलैंड, राइट. तो जहाँ पे स्टैगनेंट वाटर है वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होगी एंड देयरफॉर यहाँ पे इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन होगा, ऑर्गेनिक मैटर डीके होगा बट ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा. सो फ्रेश वाटर वेटलैंड्स आर places where methane is produced. Then another important, very important rather, source is enteric fermentation of cattle. अब जितने भी cattles हैं, like all the cows and buffaloes, right, they have a phenomena inside their rumen which is called enteric fermentation. ठीक है. अभी enteric fermentation में क्या होता है, जो भी कैटल है दे ईट, राइट, जो भी ग्रास वगैरह कुछ भी खाया तो वो फाइबरस फीड जो है वो इनके रुमेन में जाता है. देन देयर आर सर्टन बैक्टीरियाज एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ दिस कैटल्स. दीज आर प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया एंड फंजाई. द बैक्टीरिया मेनली हियर प्रेजेंट आर मिथेनोजेंस, राइट. So what happens is that this fibrous feed पे ये तीनों
ये सब ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं, राइट, एंड दिस इज़ देन कन्वर्टेड टू मीथेन। ये मिथेनोजेंस और ये सारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस फाइब्रस फीड पे जब एक्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, तब मीथेन इज़ रेड्यूस्ड इन टू वेज, राइट, व्हेन दे बर्प, लाइक जब वो जैसे हम लोग डकार खाते हैं वैसे एनिमल्स भी दे बर्प, राइट, सो during that time methane is released, and likewise when they carry out their normal like what we say, answering to the call of nature, right, so at that time also methane is released. So most of the cattle are responsible for release of methane, right. Then biomass burning, मतलब for example लाइक फॉरेस्ट फायर हो गया, या तो फिर लाइक सूखे हुए घास का कोई लाइक अगर किसी फील्ड में सूखा हुआ घास पड़ा है या फिर कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है उसको बर्न किया, तो ऑल दिस विल लीड टू मीथेन प्रोडक्शन. अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज फ्लडेड राइस फील्ड्स. तो अगर आप लोग को पता हो, राइस जहाँ पे भी ग्रो करते हैं उस फील्ड को पानी में डुबा के रखते हैं, राइट. राइस फील्ड्स आर ऑलवेज सबमर्ज्ड इन वाटर. उनको पानी में क्यों रखते हैं इज़ बिकॉज दिस इज़ अ टेक्निक वेयर दिस टेक्निक हैज़ बीन अडॉप्टेड बिकॉज by this technique weeds are reduced. weeds जो होते हैं वो अगर उनको अगर इस फील्ड को पानी में ड्रेंच करके रखो तो weeds जो है वो सफोकेट हो जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो इसलिए weeds जो है वो नहीं ग्रो होते. बट राइस ग्रो होता है क्योंकि राइस के पास एक एरेनकाइमा सेल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट हर प्लांट के पास एरेनकाइमा सेल नहीं होता. So rice fields are also a very important source of methane production because here oxygen level is very low. And another important source are all the landfills. Landfills वो एरिया है जहाँ पे हमारा रोज का वेस्ट जाता है, जहाँ पे हमारे घर का कचरा सब जाके डंप होता है. तो अगर आपने कभी देखा हो तो लैंडफिल में कितनी बार रैंडमली कहीं कहीं पे फायर स्टार्ट हो जाता है, दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ मीथेन, राइट. सो these are some of the sources that leads to production of methane. Now the third gas is nitrous oxide. This is also called as laughing gas, right. तो सबको पता है laughing gas क्या होता है, right. Now this gas undergoes decomposition very slowly. इसका decomposition process जो होता है बहुत slow होता है, and therefore क्योंकि ये एक decomposition slow हो रहा है तो obviously this will remain in the atmosphere for a longer time. So this tends to accumulate in the atmosphere. Now नाइट्रोजन के दूसरे जो ऑक्साइड्स होते हैं, राइट, these are reacted upon और cleared rapidly. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाइट्रस ऑक्साइड होता है, राइट, नाइट्रस डाइऑक्साइड होता है, और भी टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं नाइट्रोजन के, पर वो सब जल्दी से क्लियर हो जाते हैं. बट नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है वो जल्दी से क्लियर नहीं होता, जिसकी वजह से एक्यूमुलेशन एटमॉस्फेयर में होता है. नाउ burning of nitrogen rich fuels, livestock waste, right, breaking down of nitrogen rich fertilizers in soil and contaminated groundwater, all of these are like reasons for the production of nitrous oxide, and mainly these are produced when fertilizers are soaked into the soil or water. तो हमारा जो भी फर्टिलाइज़र, मेनली जो भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं फील्ड में, राइट, तो वो जो भी फर्टिलाइज़र है क्योंकि वो पानी में मिक्सअप होता है, सोक होता है, सॉइल में मिक्सअप होता है,
तो उसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनता है. सो फर्टिलाइज़र इज़ अ वेरी बिग थ्रेट फॉर नाइट्रस ऑक्साइड प्रोडक्शन. So the very common source of production of nitrous oxide is our agricultural activity. तो हम जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं वो तो ठीक है, बट उसकी वजह से जो फर्टिलाइज़र्स हम यूज़ करते हैं, all these fertilizers they enter the soil, right, and they produce nitrous oxide. When rain falls, they get leached into the rivers and all, and that also contaminates the river. Then biomass burning, that is forest fires and all, also leads to nitrous oxide production. Apart from that, nylon production एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है नाइट्रस ऑक्साइड का. नाइलॉन टर्म तो सबने सुना होगा. नाइलॉन की बहुत सारी चीज़ें बनती है. फॉर एग्जांपल बैडमिंटन का जो प्लास्टिक का रैकेट होता है, दैट इज़ मेड अप ऑफ नाइलॉन, राइट. सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है जो नाइलॉन प्रोड्यूस करती है. अब वो इंडस्ट्रीज़ जो है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रस ऑक्साइड. Now see what happens is that nitrous oxide arise from adipic acid production during the oxidation of ketone alcohol mixture with nitric oxide. तो एडिपिक एसिड में से नाइट्रस ऑक्साइड बनता है. ठीक है, मेन चीज़ समझने की ये है कि एडिपिक एसिड में से नाइट्रस ऑक्साइड बनता है. नाउ फॉर ईच किलोग्राम ऑफ एडिपिक एसिड मेड, अब 1 किलोग्राम का एडिपिक एसिड अगर बनना है तो अराउंड 30 ग्राम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. एंड एडिपिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नाइलॉन, राइट. सो what you need to know is that nitrous oxide arises from adipic acid, and adipic acid is a very important thing for nylon production. तो क्योंकि adipic acid बनाना है तो obviously when adipic acid will be made, nitrous oxide will also be made. So for each gram, for 1 kilogram of adipic acid, 30 grams of nitrous oxide is also produced. So nylon production is also a very important source of nitrous oxide. Now the next important greenhouse gas is chlorofluorocarbons. So chlorofluorocarbons are man-made, colorless, odorless, easily liquefiable chemicals. तो सबसे पहला तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ नॉट अ नेचुरली प्रेजेंट ग्रीन हाउस गैस, इट इज़ मैन मेड गैस. ये मैन मेड गैस है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर मीथेन है, ये तो नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा हमने ऐड ऑन किया. बट क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो सोलली मैन मेड कंपाउंड है, कलरलेस है, अडरलेस है और लिक्विफाइबल केमिकल है. Now this has more potential than any other greenhouse gas for global warming. ग्लोबल वार्मिंग करने में जितना पोटेंशियल क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है उतना किसी ग्रीन हाउस गैस का नहीं है, राइट. नाउ दीज आर स्टेबल कंपाउंड्स. नाउ व्हाट मेक्स दिस कंपाउंड so strong candidate for global warming is this reason that these are stable compound. ये stable compounds है और ये 80 से 260 ईयर्स तक एटमॉस्फेयर में रह सकते हैं. दीज कैन रिमेन इन द एटमॉस्फेयर एज इट इज़ फॉर 80 to 260 ईयर्स, और इतने साल तक ये एनवायरनमेंट को हार्म करते रह सकते हैं. देयरफॉर दीज आर the ones that are like have more potential for greenhouse gases, have more potential for global warming. Synthetic gaseous compounds of carbon and halogens. So what are chlorofluorocarbons? These are synthetic gaseous compounds, right. Synthetic है मतलब man made origin है, gaseous compound है, किससे बना है, कार्बन और हैलोजन से. So when we say mainly क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मतलब हुआ कि ऐसा कार्बन जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, वैसे ही फ्लोरोकार्बन भी होते हैं, राइट. So it can also be named as bromofluorocarbons when bromine is present. So these are
a combination of carbon and halogens. Halogens वो सारे group like chlorine, bromine, fluorine, all of these are halogens. So in spite of international efforts to check, CFCs are still rising globally at a rate of about 5% per year. तो हर साल 5% CFC राइज इंक्रीज़ हो रहा है ओवरऑल ग्लोबल क्लाइमेट में, जबकि एफर्ट्स डाले गए हैं. सबको पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो हार्म करता है, बट स्टिल अपार्ट फ्रॉम ऑल द एफर्ट्स it is still increasing at a rate of 5% per year. Now what are the sources? एयर कंडीशनर्स. आपके जो एयर कंडीशनर्स हैं जो आप घर पे यूज़ करते हैं, राइट, जिससे वी गेट कोल्ड एयर in our rooms, that is because of air conditioners. But air conditioners are a very great source of chlorofluorocarbons. Then your refrigerators that we use, right, ये दोनों ही अप्लायंसेस में अगर आपने नोट किया हो तो बाहर से गर्म हवा निकलती है, राइट. रेफ्रिजरेटर में पीछे से गर्म हवा निकलती है. एयर कंडीशनर में बाहर एक आउटलेट बनाते हैं जिसमें से गर्म हवा निकलती है. ऑल दिस लीड्स टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन. देन इवेपोरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स. अब इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें आप दूसरे केमिकल्स मिक्सअप कर सकते हो. तो फॉर एग्जांपल एसीटोन. सो जब ये सब जो कंपाउंड्स होते हैं वो जब इवेपोरेट हो जाते हैं तो दैट लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. अपार्ट फ्रॉम दैट एरोजोल स्प्रे कैंस, मतलब बहुत सारे स्प्रे कैंस जो होते हैं जिसमें एरोजोल का यूज़ होता है, राइट. प्लास्टिक फोम एंड प्रोपेलेंट. सो एरोजोल स्प्रे कैंस जो है बीच में बहुत फेमस हो गया था, अभी भी कहीं कहीं पे अवेलेबल होता है. सो इट हैज़ अ वेरी क्या होता है कि एकदम कूल इफ़ेक्ट होता है जब स्प्रे करते हैं तो एरोजोल पार्टिकल्स यूज़ होते हैं. बट these are related to chlorofluorocarbon, so these were banned later on in US and all. But I actually don't have exact data like it has been banned in everywhere or not, but aerosol spray cans are a source of chlorofluorocarbons. Now the next gas is carbon monoxide. As I told, carbon monoxide is not actually a greenhouse gas, but it only enhances the effect of other greenhouse gases. So this is a colorless, odorless, tasteless, non-irritant and ubiquitous asphyxiating gas. ठीक है, ये एक ऐसा गैस है, राइट. एंड this is produced by the incomplete combustion of hydrocarbons, solid, liquid and gaseous carbon containing fuels. तो जो भी फ्यूल्स हैं, जो भी आपके व्हीकल्स में जो भी हाइड्रोकार्बन्स यूज़ होता है, उनका जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है. सो 96.5% एज हैवी एज एयर एंड इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर. तो ये जो गैस है ये एयर से भी बहुत ज़्यादा हैवी होता है एंड ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है. इट इज़ यूजुअली फाउंड इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इन द अर्बन एटमॉस्फेयर. So why is it found in high concentration in urban atmosphere? क्योंकि urban atmosphere यानी कि urban area जो है वहीं पे ज़्यादा vehicles use होते हैं, trucks, buses, like all the two wheelers, four wheelers, everything, all of this produces carbon monoxide, and therefore we say that please reduce the use of all these vehicles. इसलिए बोलते हैं कि 4 लोग एक जगह जाते हैं और एक कॉलेज में जाने वाले हो या फिर एक ऑफिस में जाने वाले हो तो एक इंसान कार लेके ना जाए बल्कि कार पूल करे और एक कार में 5 लोग जाए. सो दिस इज़ द रीज़न वाई इज़ इट सेड, बिकॉज ऑल ऑफ द व्हीकल प्रोड्यूसेस कार्बन मोनोऑक्साइड. इट कैन किल अ पर्सन इन मिनट्स इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द गैस इज़ हाई इनफ. अगर गैस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा तो वो इंसान को मार भी सकता है, right. So this is a when combustible fluid
दैट इज़ गैस, ऑयल, कैरोसिन, वुड और चारकोल, कुछ भी, ये कुछ भी जब बर्न होता है जो हमारे व्हीकल्स में होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड. This is emitted from exhaust gases from automobile and industrial machineries. Even some industries also produce carbon monoxide. It can disrupt the transport of oxygen by the blood, leading to heart and health problems. तो जब ये बहुत सारे ह्यूमन प्रॉब्लम्स भी करता है, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन में ट्रांसपोर्ट हो जाए ब्लड के फ्लो से, तो इससे हार्ट प्रॉब्लम्स और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी होती है. इसलिए अगर आपने नोट किया हो तो कभी कभी जब आप बाहर के एनवायरनमेंट में जहाँ पे ट्रैफिक में खड़े रहते हैं, सम पीपल गेट सफोकेटेड बिकॉज the carbon monoxide gas, it gets transported to by the blood, and this can disrupt the oxygen, right? So this can cause many problems to humans. Though it does not cause climate change directly, as I said, but its presence affects the abundance of greenhouse gases such as methane and कार्बन डाइऑक्साइड. कितनी बार रिएक्शंस होके कार्बन मोनोऑक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, एंड दिस लीड्स टू इवन मोर इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेस. सो व्हाट आर द सोर्सेज? ऑल ऑफ द पावर प्लांट्स दैट यू नो कैन लीड टू कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्शन. All the vehicles, the cars, the trucks, the buses, then the industries and biomass burning can also lead to carbon monoxide production. Now greenhouse gases का part हमारा complete हुआ. अब let us understand that what is global warming. So how do we define global warming? Is that an increase in global average surface temperature resulting from an increase in the amount of greenhouse gases. क्योंकि greenhouse gases का amount increase हुआ तो उसकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज सरफेस टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ तो उसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं. क्योंकि ग्रीनहाउस गैसेस की वजह से हीट ट्रैप हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है पूरे ग्लोब का, and this is called global warming. Now oceans have a very important role in global warming because ऐसा बोलते हैं कि ओशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्टोर ऑफ कार्बन होता है. ठीक है, ओशंस आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टोर ऑफ कार्बन. ओशन को कार्बन सिंक भी बोलते हैं क्योंकि सारा जो कार्बन होता है एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज, एटमॉस्फेयर और ओशन के बीच में एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से कार्बन जो है ज़्यादातर ocean have more capacity to store carbon, we can say that way. So in the last 200 years, अब पिछले 2 सालों में क्या हुआ है, the oceans have absorbed a third of CO2 produced by human activities. Now as I said, oceans have more capacity to absorb carbon dioxide. So last 200 years में about a third of carbon dioxide has been produced by human activity has been absorbed by the oceans. अब oceans ने ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया है. ठीक है, so 90% of extra heat trapped by the rising concentration of greenhouse gases. तो ऐसा मानते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो हीट निकला उसका 90% एक्स्ट्रा हीट तो ओशन ने ही ट्रैप कर लिया है, ओशन ने उस हीट को अपने में ले लिया है. राइट नाउ ओशंस एज आई सेड आर रिलेटेड विथ वेदर फॉर्मेशंस. हमारा जो भी वेदर और विंड फॉर्मेशंस होता है वो सब ओशन की वजह से होता है. तो अब हम देख सकते हैं कि बहुत एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी होते हैं. changing ocean currents, rising sea levels and temperatures, melting of sea ice and ice sheets, everything is related to this global warming and ocean. So as ocean temperature increase, they become less able to absorb
कार्बन डाइऑक्साइड। अब ओशन का टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की उसकी जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, राइट। सो एज द ओशन टेम्परेचर विल इंक्रीज, देयर कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड विल डिक्रीज। तो there can be a time when the ocean will stop absorbing carbon dioxide, तो that would be still a worse scenario, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं होगा, ओशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा और वो सब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रहेगा, राइट। सो that can have lethal effects. Though this is also not good, as the ocean temperature, as the ocean is continuously absorbing carbon dioxide, ट्रैप करता जा रहा है, उसकी वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, राइट। उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सो ocean, as I said, ocean is something that mediates temperature, drives the weather, determining rainfall, droughts and floods. तो हमारे जो भी क्लाइमेटिक एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं ओशन से रिलेटेड है। सो इंक्रीज्ड CO2 लेवल कैन लीड टू ओशन एसिडिफिकेशन, ठीक है। अभी CO2 लेवल इंक्रीज होगा तो ओशन जो है वो एसिडिफाई होने लगता है, मतलब pH जो है वो कम होने लगता है ओशन का, राइट। सो व्हेन pH डिक्रीजेस, दिस कैन लीड टू coral reef destruction. So coral reef will not survive by 2050. एक एस्टिमेट ऐसा बोलता है कि कोरल रीफ्स जो हैं वो 2050 तक शायद हमें देखने ही नहीं मिलेंगे ओशंस में, क्योंकि कोरल रीफ्स आर सेंसिटिव टू पॉल्यूशन एंड आर सेंसिटिव टू चेंजिंग pH. So as the ocean is getting acidified, the pH is getting becoming low. So coral reef is said to not survive in 2050. If you all do not know, coral reefs are organisms that are present in the ocean, right? And deep down the oceans, they have their own ecosystem. इनकी वजह से एक अलग ही कोरल रीफ इकोसिस्टम काउंट होता है जिस पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट है। तो अगर ये इकोसिस्टम ही नहीं रहेगा तो पूरा कोरल रीफ इकोसिस्टम डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके साथ और जितने ऑर्गेनिजम्स जुड़े हुए हैं those all organisms are going to die. So this would be a great loss if like this the CO2 level will keep on increasing. Now इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या क्या इफ़ेक्ट हुआ है या हो सकता है। सो सबमर्जन्स ऑफ लो लाइंग आइलैंड्स एंड कोस्टल लैंड्स टू द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इन द इंडियन हिमालयाज। तो जितने भी लो लाइंग आइलैंड्स हैं, मतलब कि ऐसे आइलैंड्स जो सी लेवल से नीचे हैं, ठीक है, कोस्टल लैंड्स जो हैं, ठीक है, वो सब हिमालय में जो ग्लेशियर है वो सब मेल्ट होने की वजह से सारा पानी इन लो लाइंग आइलैंड्स में आके इन आइलैंड्स को सबमर्ज कर सकता है। मतलब ये सारे आइलैंड जहाँ पे लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, दीज ऑल आइलैंड्स आर गोइंग टू बी सबमर्ज्ड कम्प्लीटली इन वाटर। इन फैक्ट बहुत सारी जगह पे ऑलरेडी सबमर्ज्ड हो चुके हैं। तो वहाँ पे जो भी एनिमल्स हैं जो उस एरिया में रहते हैं, these animals have gone through hard times because to survive. Likewise, human populations have also migrated from that area. Then volumetric flow rate in rivers of India and South Asia. तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि सी जो है वो वाटर जो है वो लेवल राइज हो रहा है, जिसकी वजह से कितनी बार हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ग्लेशियर्स मेल्ट हुए तो किसी रिवर का जो फ्लो है वो बहुत ड्रास्टिक हो जाता है, बहुत वॉल्यूमेट्रिक फ्लो हो जाता है। सो दिस कुड बी हार्मफुल। देन अनदर इफेक्ट इज़ दैट क्लाइमेट हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली वॉलेटाइल। तो क्लाइमेट जो है हमें पता है अब इंक्रीजिंगली वॉलेटाइल हो गया है। वॉलेटाइल का मतलब कि चेंज होता रहता है, यानी कि आज गर्मी है तो कितनी बार कल रेनफॉल हो जाता है, ठीक है।
we never know what happens with the climate nowadays, right? So therefore it is said that climate has become increasingly volatile. There has been a steady sea level rise. अब global warming की वजह से glaciers melt होते हैं, तो हमें steady sea level rise देखने मिलता है, क्योंकि glaciers melt होते हैं तो वो सारा पानी sea में add होता है and the level rises. Increased cyclonic activity, right? Now as the sea level will rise, oceans and seas will be affected, so that will lead to change in cyclonic activity. Precipitation patterns may change. As I said, precipitation is like snow और rainfall जब होता है तो उसको precipitation बोलते हैं. तो वो जो पैटर्न्स है वो चेंज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी नाउअडेज दैट हमारे लिए रेनी सीज़न जो मंथ्स थे, अब उस मंथ्स में हमें इजीली रेनी सीज़न देखने नहीं मिलता. कभी एक महीना आगे होता है, कभी एक महीना पीछे होता है. सो प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स हैव चेंज्ड. लो लाइंग आइलैंड्स इन सुंदरबन हैव गॉन. नाउ दिस इज़ एन एग्जाम्पल. सी सुंदरबन जो है कोलकाता में, वहाँ पे लो लाइंग आइलैंड्स जो है वो पूरी तरह काफ़ी सारे सबमर्ज हो चुके हैं. Himalayan glaciers retreat. Now what is Himalayan glaciers retreat is that sea level की वजह से आइस मेल्ट होने की वजह से कितनी बार क्या होता है कि ग्लेशियर्स जो है वो रिवर्स के बीच में कहीं पे दे कम इन बिटवीन द रिवर्स. रिवर जहाँ पे फ्लो होता है वहाँ पे कहीं आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से गैंजेस और मैनी रिवर का जो फ्लो रेट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि बीच में ग्लेशियर फॉर्मेशन हो गया है. तो अगर ये फ्लो रेट डिक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वाटर है वो इजीली अवेलेबल नहीं होगा फार्मर्स को, क्योंकि ये सारी रिवर्स जो है वो फार्मर्स के लिए लाइफलाइन है, राइट. सो this river's flow rate if decreased, this could be a harm in agriculture ultimately. Increased landslide and flooding, and coral bleaching is very common, more than 70% in Lakshadweep and Andaman. So what we need to know is that Lakshadweep Island और Andaman Island में already more than 70% coral bleaching हो चुका है, मतलब coral remove हो चुके हैं. And दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यूएस जो है वो वर्ल्ड का 25% एमिशन करता है, राइट, पॉल्यूशन जो भी ग्रीन हाउस गैसेज है उसका. बट स्टिल बांग्लादेश जिसका 0.1% एमिशन ही है पूरे वर्ल्ड में, वो वर्स्ट अफेक्टेड है क्लाइमेट चेंज से. क्यों? क्योंकि बांग्लादेश जो है उसकी साइज़ छोटी है, पॉपुलेशन एनॉर्मस है, और जिसकी वजह से ट्रैफिकिंग सब होता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन, मतलब वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज का वर्स्ट इफ़ेक्ट ये बांग्लादेश देख रहा है. बांग्लादेश उन कंट्रीज़ में से है जो क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं, जबकि उनका एमिशंस जो है पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 0.1% है. और यूएस जैसी जो कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पे 25% एमिशन है पूरे वर्ल्ड का, बट स्टिल यूएस इज़ नॉट वर्स्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज. नाउ कमिंग टू सी लेवल राइज. सो हाउ डज द सी लेवल राइज? वी नीड टू अंडरस्टैंड द फिनोमिना. सो सी एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम सन. सी क्या करता है? सन में से हीट एब्जॉर्ब करता है, एंड बिकॉज ऑफ विच सी एक्सपांड्स, इसकी वजह से सी एक्सपांड होता है. ये एक वाटर की प्रॉपर्टी है कि जब वो गर्म होता है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक्सपैंड होते हैं, ठीक है. सो दिस विल कंट्रीब्यूट टू सी लेवल राइज. अब जो मॉलिक्यूल्स थोड़ी सी जगह में रहते थे, हीट को सन का हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से वो मॉलिक्यूल्स ज़्यादा जगह लेने लगे, जिसकी वजह से सी लेवल राइज हुआ. Another thing is that ice largely refracts sun rays back to sun. अब आइस क्या होता है? जहाँ पे भी आइस होता है वहाँ पे सन रेज जो है वापस दे हार्डली रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है. सॉरी, आइस लार्जली रिफ्लेक्ट सन रेज बैक टू स्पेस. सो
आइस क्या करता है, सन रेज को स्पेस में वापस भेजता है, ठीक है। तो आइस जो है वो एक्चुअली सन रेज कभी एब्जॉर्ब नहीं करता. Ice will never absorb sun rays, and that is the reason why ice is cold, and why in areas where there is ice present there is not much heat, because ice unlike water क्या करता है, हीट एब्जॉर्ब करता है, बट आइस हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इसलिए आइस हमेशा ठंडा रहता है. बट अब क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है तो आइस आर बाउंड टू मेल्ट, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आइस को मेल्ट होना इज़ लाइक एन ऑब्वियस इफेक्ट, एंड दस रिट्रीटिंग सी आइस, अब इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग सी आइस, मतलब कि आइस जो है दैट इज़ बिकमिंग वाटर, विल अलाउ द सन टू वार्म द नाउ एक्सपोज्ड सी वाटर. अब आइस जो है वो क्या करेगा, वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, आइस मेल्ट होके वाटर बना, अब ये वाटर जो बना दैट विल नाउ एब्जॉर्ब हीट, तो अब दिस वाटर कैन एब्जॉर्ब हीट एंड कैन एक्सपैंड एंड कैन लीड टू सी लेवल राइज. So these are the two phenomenons how sea level can rise. First is that water directly heat को absorb करता है, expansion की वजह से sea level rise होता है. Another is कि अगर ice ऐसे ही प्रेजेंट है तो आइस का तो काम है कि वो सनरेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, हीट नहीं लेता. बट अगर टेम्परेचर राइज होता है, गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो आइस मेल्ट होगा, मेल्ट होके सी वाटर बनेगा. अब वाटर में से, अब वाटर की तो कैरेक्टरिस्टिक है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सो हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड, इट विल देयरफॉर लीड टू सी लेवल राइज. So this is a diagram explaining that what happens at low heat and what happens at high heat. Low heat में as you can see the molecules are all together taking less space. High heat में the molecules they expand and they take more space. So this is the reason why sea level rise. Now there is a decline in global sea ice. So हम सबको पता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबली सी आइस का जो अमाउंट है वो रेड्यूस हुआ है क्योंकि टेम्परेचर राइज हुआ है. सो टू थिंग्स आर रिस्पॉन्सिबल एज आई सेड, द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर एंड द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस आर द टू मेन रीजन्स वाइल द सी लेवल इज राइजिंग. अब हमें पता है अगर सी लेवल राइज होता जाएगा तो देर आर मैनी सिटीज़ दैट विल बी ड्राउंड. As the sea level will be rise, there will be drastic effect in the climate also. Now, okay, so this is it about greenhouse gases, global warming and climate change. Now we are going to understand about ozone layer, ozone depletion. So for that, first of all we need to understand that what is UV radiation. So UV radiation mainly 3 टाइप्स के होते हैं, राइट. सन के जो सबसे पास एक लेयर होता है, फिर उसके बाद एक लेयर होता है और उसके बाद एक लेयर होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन टाइप ऑफ यूवी रेडिएशन इज़ यूवी ए रेडिएशन. सो दिस ऑरेंज कलर दैट यू सी जो सन से सबसे दूर है दैट इज़ यूवी ए रेडिएशन. दिस रेडिएशन हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड इट हैज़ द लोएस्ट एनर्जी लेवल. सो इट कैन अफेक्ट डीपर सेल्स. And what we need to know is that this is most amount of UV that reach the earth is UVA. UVA ऐसा UV radiation है जो अर्थ पे पहुंचता है, ठीक है. Now second is UVB. So this red वाला is the UVB. This is medium wavelength and UVB is absorbed when ozone depletes. अब ये जो रेडिएशन है ये तब आता है हमारे अर्थ पे जब ओजोन का जो लेयर है वो डिप्लीट होता है, मतलब उसमें होल आ जाता है, राइट. ओजोन का लेयर जो है वो पतला हो जाता है. सो तब ये यूवीबी हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, अदरवाइज नहीं कर सकता. दिस लीड्स टू सनबर्न एंड कैंसर. एंड द थर्ड टाइप इज नियरेस्ट टू द सन, द मोस्ट डेंजरस वन. दिस हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ and this is the most dangerous, can cause serious damage to your body. But the good thing is that के ओजोन लेयर से ये completely filter out हो जाता है. So this is completely filter out by ozone.
but UVB is the one that gets absorbed if ozone gets deplete. तो अगर ओजोन लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हुआ तो चांसेस है कि UVC भी हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर हो सकता है. सो दीज आर द टू हार्मफुल रेडिएशंस, UVB एंड UVC, दैट कैन कॉज हार्म टू आवर एनवायरनमेंट एंड ड्यू टू विच बहुत सारे प्रॉब्लम्स ह्यूमंस और एनिमल्स को हो सकते हैं. राइट, नाउ वी कम टूवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओजोन लेयर. So ozone layer was discovered in 1930 by French physicist Charles Fabry and Henri Buisson. So ये physicist जो है इन दोनों ने 1930 में ओजोन लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला था. राइट, so this is a highly reactive gas composed of 3 oxygen atom. अब ये एक रिएक्टिव गैस है, मतलब कि किसी भी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट करके कुछ और मॉलिक्यूल बना सकता है. So this is a reactive gas, it can easily react, and this is composed of 3 oxygen atoms. Now it is both a natural and a man-made product. अब ozone layer actually तो naturally present होता है, that is in the Earth's upper atmosphere, that is in the stratosphere. But अब man-made activities की वजह से भी ओजोन बनने लगा है, जो बनता है ट्रोपोस्फियर में. ठीक है, तो जो लेयर अर्थ को प्रोटेक्ट करता है वो होता है स्ट्रैटोस्फियर वाला ओजोन लेयर. राइट, सो अबाउट 20 to 26 किलोमीटर अबाउ द सी लेवल, शॉर्ट वेवलेंथ UV रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. अब एज आई सेड 20 to 26 किलोमीटर हमारे एटमॉस्फेयर से, सी लेवल से, शॉर्ट वेवलेंथ UV रेडिएशंस जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, जो स्प्लिट होता है ऑक्सीजन एटम में. और ये ऑक्सीजन एटम जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, जो कंबाइन करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ और ओजोन बनाता है. तो हम देखते हैं केमिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ कि ओजोन कैसे बनता है. क्या होगा कि स्ट्रैटोस्फियर में UV लाइट जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एटम. ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसको हम O2 लिखते हैं, और सिंगल हम जब लिखे तो दिस इज ऑक्सीजन एटम. सो ऑक्सीजन इज स्प्लिटिंग इनटू ऑक्सीजन एटम. नाउ दिस ऑक्सीजन एटम्स आर हाईली रिएक्टिव. सो व्हाट विल हैपन दैट ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लिबरेट हुए, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 2 ऑक्सीजन प्लस it will now combine with 2 molecules of oxygen, leading to formation of 2 molecules of ozone. राइट, सो ये जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ओजोन बनाता है. अब इसी सेम रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ UV लाइट विल गिव ऑक्सीजन एटम, एंड इस वाले फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम 2 ना लिखें और सिंगल एटम यहाँ से कंसीडर करें, तो one oxygen atom will combine with oxygen molecule and give ozone. Right, so this is how ozone formation takes place in the stratosphere. अब so this is formed by a photochemical reaction. क्यों photochemical reaction? Because this is happening in the presence of light. Now ओजोन फॉर्मेशन तो हुआ, another photochemical reaction will now also causes breakdown of ozone due to absorption of radiation. अब दूसरा जो photochemical reaction है वो ओजोन का ब्रेकडाउन करता है रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की वजह से. अब ओजोन बना तो ओजोन ब्रेकडाउन भी होता है, एंड दिस इज़ लाइक ओजोन जो है वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम में स्प्लिट हो जाता है, और फिर ये जो ओजोन है वो ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होकर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाता है, और इस तरीके से ओजोन ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, तो फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन बैलेंसेस ईच अदर. अब ओजोन का बनना और ओजोन का टूटना
ये एक नेचुरल प्रोसेस है और एक दूसरे को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से दिस रिजल्ट्स इन इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ यूवी रेडिएशन, जिसकी वजह से जो यूवी रेडिएशन शॉर्ट वेवलेंथ वाले हैं यानी कि यूवीसी और यूवीबी, वो कम्प्लीटली ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो ओजोन का काम ही है यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, उसी से ओजोन बनता है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड प्रोसेस एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू because this protects our environment from UV light. Right now this happens in stratospheric regions. Now concentration of ozone is highest in spring, that is February to April, and is lowest in the fall, that is July to October. ओजोन का जो concentration होता है सबसे ज़्यादा होता है स्प्रिंग में और सबसे कम होता है फॉल में। ये रीज़न ये क्यों होता है ये हम समझेंगे बाद में। अभी पहले हम समझ लेते हैं कि ओजोन लेयर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। सो वी कॉल ओजोन एज ओजोन शील्ड। सो हमारे एटमॉस्फेयर में देर आर मेनली 5 लेयर्स, द ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर, राइट। तो स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन लेयर एक्ट एज ओजोन शील्ड। तो हमारा जो सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर का, स्ट्रैटोस्फियर, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, वहाँ पे जो ओजोन है उसको हम ओजोन शील्ड बोलते हैं। ये यहाँ पे क्यों स्पेसिफाई किया है, क्योंकि ओजोन लेयर, एज आई सेड, ओजोन इज़ नाउ ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो फॉर्म्ड इन द ट्रोपोस्फियर, पर ट्रोपोस्फियर में जो ओजोन बनता है वो हमारे लिए ओजोन शील्ड का काम नहीं करता। ठीक है, दैट इज़ फॉर्म ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो सी फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अर्थ और ये उसके आसपास का लेयर। सो दिस इज़ ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ये जो सेकेंड लेयर है स्ट्रैटोस्फियर, यहाँ पे वी कैन सी द ओजोन शील्ड। ठीक है, जिसकी वजह से हम यूवी रेज से बचे रहते हैं, राइट। सो ओजोन लेयर इज़ अ लेयर विच एब्जॉर्ब्स ऑल द यूवी रेज, राइट, and this protects our earth, protects the earth biota from harmful effects of strong UV radiation. Absorption of UV radiation by ozone increases more rapidly with its thickness. तो ओजोन जितना ज़्यादा थिक होगा यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन उतना अच्छा होगा। ओजोन लेयर अगर पतला हो जाएगा तो यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन उतना स्लो होगा, उतना कम होगा। Thus maximum amount of UV radiation passing through the atmosphere reaches the earth's surface in tropics. तो ट्रॉपिकल एरिया जो होता है वहाँ पे क्या होता है कि यूवी रेडिएशन मैक्सिमम पहुँचता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में ओजोन की थिकनेस जो है वो कम हो जाती है, तो वहाँ पे यूवी रेडिएशन ज़्यादा होता है। तो आप कभी ट्रॉपिकल एरियाज़ में गए हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल केरला या फिर से लाइक तमिलनाडु, सो ये इन सब जगहों में आपको हीट ज़्यादा महसूस होगी क्योंकि यूवी रेडिएशन का इफ़ेक्ट वहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि ओजोन लेयर वहाँ पे कम है, दैट इज़ नियर द इक्वेटर। और ये सब एरियाज इक्वेटर्स के पास होते हैं। एंड दिस अमाउंट डिक्रीजेस टूवर्ड्स पोल, और ये जो अमाउंट होता है वो पोल में डिक्रीज़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि पोलर एरिया जैसे कि आर्टिक और एंटार्क्टिका में ओजोन का थिकनेस बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे थिकनेस ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से यूवी रेडिएशन मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है। अब ओजोन का मेजरमेंट कैसे होता है? सो देयर वाज अ साइंटिस्ट GM डॉब्सन, ही डेवलप्ड अ सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्पेक्ट्रम को यूज़ करके, लाइट स्पेक्ट्रम्स को यूज़ करके जो भी हमें चीज़ मेजर करनी है उसकी मदद से ओजोन को मेजर करता है। सो दिस इज़ नेम्ड एज डॉब्सनोमीटर। ये जो सिंपल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया उसको नाम दिया गया डॉब्सनोमीटर ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, एंड दिस इज़ यूज्ड टू मेजर द स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन फ्रॉम द ग्राउंड। ग्राउंड से स्ट्रैटोस्फेरिक ओजोन को इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से
मेजर कर सकते हैं. सो दिस इज़ अ फोटो ऑफ अ डॉप्सोनोमीटर. नाउ बिटवीन 1928 to 1958 Dobson established worldwide networks of ozone monitoring stations. डॉप्सन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड वाइड मॉनिटरिंग स्टेशंस बनाए ओजोन के, एंड दिस कंटिन्यूज टू ऑपरेट इवन टुडे. और आज भी ये स्टेशंस चलते हैं जहाँ से ओजोन मेजरमेंट होता है. सो ओजोन को मेजर करने का जो यूनिट है दैट इज़ कॉल्ड डॉप्सन यूनिट, एंड दिस मेजर्स टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ओवरहेड. अब ये डॉप्सन मतलब ये बताता है कि टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन क्या है, और इसको डॉप्सन यूनिट नाम दिया, नेम्ड ऑन द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द डॉप्सोनोमीटर, राइट. Not rather discovered but developed, right. So this is the Dobson unit which is used to measure ozone, and the instrument is prepared by Dobson and named as Dobsonometer. Now ozone depletion. अब ozone depletion कैसे होता है? It can be depleted by free radical catalyst. मतलब कि free radical compounds जो होते हैं, जो किसी के भी साथ रिएक्ट कर सकते हैं, उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट होता है. सो व्हाट आर सच कैटलिस्ट्स? दीज आर नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल, एटॉमिक क्लोरीन, एटॉमिक ब्रोमीन, एटॉमिक फ्लोरीन. ये जितने भी हैलोजन कंपाउंड्स है ये सब तो है ही, उसके अलावा हाइड्रोक्सिल, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सब भी कैटलिस्ट हैं जो ओजोन को डिप्लीट कर सकते हैं. सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स. अब रिसेंट ईयर्स में एज आई सेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जितने भी हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं, तो हैलोजन का अमाउंट इंक्रीज़ हुआ है ड्यू टू रिलीज ऑफ मैन मेड ऑर्गेनोहैलोजेंस इन लार्ज क्वांटिटीज. नाउ व्हाट आर ऑर्गेनोहैलोजेंस? ऑर्गेनोहैलोजेंस आर compounds like chlorofluorocarbons. These are organic compounds, right, that is having halogens in them. So क्योंकि इनका फॉर्मेशन अब ज़्यादा हो गया है एनवायरनमेंट में, तो ओजोन डिप्लीशन हैज़ इंक्रीज्ड. सो either we can say chlorofluorocarbons or bromofluorocarbons. Now 3 main contributors are there for ozone depletion: human activity, natural resources and volcanic eruptions. So कितनी बार बहुत सारे नेचुरल सोर्सेज भी होते हैं जो हैलोजन कंपाउंड्स लिबरेट करते हैं और ओजोन डिप्लीट होता है. वॉल्केनिक इरप्शंस में भी कुछ कंपाउंड्स निकलते हैं, बट ये सब कुछ ह्यूमन एक्टिविटी से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जिस अमाउंट में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स निकल रहे हैं, सो is never to be compared with these two sources. So human activity is the worst source of production of chlorofluorocarbons leading to ozone depletion. Now see what happens as CFCs are emitted. अब जैसे हमारे ACs और एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स में से CFC लिबरेट होता है, दिस फ्लोट्स टूवर्ड्स ओजोन रिच स्ट्रेटोस्फीयर. अब ये जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचता है जहाँ पे ओजोन प्रेजेंट है. सो व्हाट हैपन्स इज़ दैट UV रेडिएशन व्हेन कॉन्टैक्ट्स दिस CFC मॉलिक्यूल. अब UV रेडिएशन इस CFC मॉलिक्यूल को कॉन्टैक्ट करता है, ठीक है, जो ओजोन को कॉन्टैक्ट करता था, पर अब UV रेडिएशन इज़ कॉन्टैक्टिंग CFC मॉलिक्यूल. दिस इज़ कॉजिंग वन क्लोरीन एटम टू लिबरेट. अब एक क्लोरीन एटम इस वक्त लिबरेट हो जाता है, और ये जो फ्री क्लोरीन है वो फिर ओजोन के साथ रिएक्ट करता है. सी व्हाट इज़ हैपनिंग कि UV रेडिएशन इज़ रिएक्टिंग विद CFC मॉलिक्यूल एंड इट इज़ लिबरेटिंग वन क्लोरीन एटम. नाउ दिस वन क्लोरीन एटम इज़ रिएक्टिंग विथ ओजोन. ये क्लोरीन जो है वो ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एंड दिस इज़ लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मोनोक्साइड. एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकला और एक क्लोरीन मोनोक्साइड निकला. सो नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट विद द क्लोरीन मोनोक्साइड ऑक्सीजन एटम रिएक्ट्स एंड दिस फॉर्म्स क्लोरीन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अब ये जो क्लोरीन मोनोक्साइड है इसके साथ ऑक्सीजन एटम रिएक्ट करता है,
एंड ये बनाता है क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन ओजोन लेयर जो है अपना, दैट इज़ broken down, and this leads to formation of chlorine and oxygen. This chlorine continues cycle and disrupts ozone. So what is the end product? End product is chlorine. और ये क्लोरीन जो है वो अपना साइकिल जो है कंटिन्यू करेगा और ये क्लोरीन फिर से यही प्रोसेस फॉलो करेगा। क्लोरीन ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, क्लोरीन मोनोक्साइड बनाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाएगा और क्लोरीन मोनोक्साइड फिर ऑक्सीजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा और क्लोरीन और ऑक्सीजन बनाएगा। सो लाइक दिस द साइकिल कीप्स ऑन continuing because of the production of chlorine. Now this is a continuous chain. This chlorine will go into continuous chain, harming the ozone layer. Now CFCs, the baddest part is that this CFC's lifespan is like 20 to 100 years. तो ये सालों तक, 100 साल तक ये हमारे एटमॉस्फेयर में रह सकता है, जिसकी वजह से ये बहुत हार्म कर सकता है ओजोन लेयर को, राइट। सो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अभी तो हम भले CFC का प्रोडक्शन रोक दे, बट पहले जो CFC मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो चुके हैं वो तो अभी भी एटमॉस्फेयर में होंगे एंड दे विल कंटिन्यू टू डैमेज फॉर ईयर्स इन द एटमॉस्फेयर, डैमेजिंग द ओजोन लेयर। तो अभी तो हम रोक ले, वो अच्छी बात है, बट पहले वाले तो डैमेज करने ही वाले हैं बिकॉज ये सालों तक एटमॉस्फेयर में रहते हैं। सो that is ozone depletion, and the same term is given which we call ozone hole. ozone depletion मतलब ओजोन का कम हो जाना, और ओजोन होल भी एक ऐसा ही टर्म है जिसको दिया गया है जो एक तरह से ओजोन डिप्लीशन ही है। तो ओजोन होल का मतलब ऐसा नहीं होता है कि कम्प्लीटली होल हो गया है। ओजोन होल का मतलब है कि वो एरियाज जहाँ पे ओजोन लेयर जो है पतला हो गया है, कम हो गया है, तो उसको हम ओजोन होल बोलते हैं, ठीक है। सो दिस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1985 इन एंटार्क्टिका। सो एज आई सेड, अगर आपको याद हो पहली वाली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पोलर रीजन्स में ओजोन लेयर बहुत थिक होता है, जिसकी वजह से यूवी रेडिएशन का इफ़ेक्ट कम होता है। नाउ एंटार्क्टिका इज़ अ पोलर रीजन विच इज़ completely covered with ice. So ozone hole was discovered in 1985 in Antarctica. So कहीं पे भी, फॉर एग्ज़ाम्पल एंटार्क्टिका में क्योंकि ओजोन होल मेजर हुआ तो वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एंटार्क्टिका तो ऐसा एरिया है जहाँ पे ओजोन की थिकनेस सबसे ज़्यादा है, और जब ऐसे एरिया में थिकनेस कम हो गई इसका मतलब ओजोन हैज़ स्टार्टेड डिप्लीटिंग। सो द डिक्रीज इन स्प्रिंग टाइम ओजोन लेयर थिकनेस इज टर्म्ड एज ओजोन होल। तो ओजोन होल किसको बोलते हैं? स्प्रिंग में, यानी कि स्प्रिंग सीजन जो होता है तब ओजोन लेयर का थिकनेस जो कम होता है उसको ओजोन होल बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि स्प्रिंग में एक्चुअली स्प्रिंग ऐसा टाइम है जहाँ पे ओजोन लेयर मैक्सिमम होता है, बट अगर ऐसे वक्त पे डिक्रीज़ हो जाए तो उसको ओजोन होल बोलते हैं। बट लेटर ऑन आर्टिक एरिया में भी ये डिस्कवर हुआ था 1990 में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज डिस्कवर्ड इन एंटार्क्टिका। दिस इज़ फॉर्म्ड बाय इंटेंस यूवी एक्टिविटी ऑफ CFCs. सो अब ऑलरेडी आप लोग को पता है कि यूवी एक्टिविटी CFC की वजह से होता है, जो यूवी के साथ रिएक्ट करके और हैलोजन मॉलिक्यूल्स को लिबरेट कर देता है, जो ओजोन के साथ रिएक्ट करके ओजोन को ब्रेक करता है। नाउ सी, दिस इज़ एन इमेज that I obtained from internet about ozone hole, which shows ozone hole over Antarctica, that is of 220 Dobson units, ठीक है। So 220 Dobson unit is like here, right? So this is something like a satellite image of ozone hole. Now
ozone hole, it starts appearing at the end of winter. It has maximum display in summer and it disappears, it has maximum display in spring and it disappears in summer. तो ओजोन होल हमें विंटर में दिखने लगता है, ठीक है, जस्ट अपीयर होता है, उसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्प्ले होता है स्प्रिंग में और डिसअपियर हो जाता है समर में। ऐसा क्यों होता है? विंटर में क्या होता है, विंटर में एयर हैवी होता है और जो इंडस्ट्रियल गैसेज है CFC वो एंटार्क्टिका के कुछ एरिया में आके कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, ठीक है, और CFC वाला जो हवा है, जो विंड है, वो फ्रोज़न हो जाता है और आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो तब CFC कुछ कर नहीं सकता, बट जैसे ही स्प्रिंग आता है तो आइस मेल्ट होने लगता है, क्योंकि ओजोन को ब्रेक होने के लिए ओजोन को ब्रेक होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है। जैसे ही स्प्रिंग आता है तो सनलाइट आता है, आइस मेल्ट होता है एंड जो क्रिस्टलाइजेशन है वो चला जाता है, जिसकी वजह से CFC और CIO जो होते हैं वो फ्री हो जाते हैं एंड this will release the chlorine and it will attack ozone। तो यहाँ पे CFCs मैक्सिमम एक्टिव हो जाते हैं आइस मेल्टिंग की वजह से, सनलाइट आ जाने की वजह से, तो क्रिस्टलाइजेशन इनका चला जाता है और CFCs एक्टिव हो जाते हैं। और ये समर में डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि समर में क्या होता है कि ये जो पूरा विंटर में प्रोसेस हुआ क्रिस्टलाइजेशन का वो पूरा रिमूव हो जाता है, तो क्रिस्टलाइजेशन जैसा कुछ होता नहीं है। और समर में दूसरी भी सब तरह की एयर आके मिक्सअप होती है एंटार्क्टिका में, इसलिए समर में ओजोन होल डिसअपियर हो जाता है। हम इसको और थोड़ा डीप में समझते हैं कि क्यों ओजोन होल हैपन्स ओनली ओवर एंटार्क्टिका। सो एवरी ईयर we can see a short decline in the ozone layer in total ozone over Antarctica, so for a duration of 2 months. During spring, that is September to October के वक्त हमें ये decline दिखता है। तो what happens is that CFCs जो यूरोप, रशिया, जापान और नॉर्थ अमेरिका में लिबरेट होती है। अब क्योंकि ये सब अर्बन एरियाज़ है, यहाँ पे AC, रेफ्रिजरेटर्स जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे CFCs जो भी लिबरेट होता है, दिस रीच द स्ट्रेटोस्फियर, ये स्ट्रेटोस्फियर में पहुँचता है। वहाँ से हवा मूव करती है पोल्स की तरफ। सो द विंड देयर इन द स्ट्रेटोस्फियर इट मूव्स टूवर्ड्स द पोलर रीजन। अब पोलर रीजन क्या है? आर्टिक एंड एंटार्क्टिक, राइट? सो दिस इज़ द पोलर रीजन। Now in winter months Antarctica receives no sunlight। विंटर में क्या होता है, एंटार्क्टिका के पास कोई सनलाइट नहीं होता एंड इट इज़ कम्प्लीटली डार्क एंड कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, दैट इज़ -85। कैन यू इमेजिन लाइक व्हाट इज़ -85 डिग्री सेल्सियस? हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी जाए कितनी बार लाइक माइनस में चला जाता है, तो वी गेट फ्रीज। देन इमेजिन व्हाट इज़ -85 डिग्री सेल्सियस। तो विंटर में एंटार्क्टिका के पास कोई लाइट नहीं होता, टेम्परेचर बहुत लो होता है। दिस फैसिलिटेट्स फॉर्मेशन ऑफ आइस क्लाउड्स। नाउ रिकॉल व्हाट आई हैड सेड कि विंटर में क्रिस्टल्स बन जाते हैं CFC के। तो CFC जो पोल्स पे आए वो सबका आइस क्लाउड्स बन जाएगा, which is this kind of atmosphere is different from the rest of the world। So this type of circulation of wind is called polar vortex। ऐसा जो wind का circulation है इसको polar vortex बोलते हैं। So ice clouds क्या करते हैं? They provide catalytic surface upon which chlorine atom can react with ozone and degrade it। ठीक है, आइस क्लाउड्स एक सरफेस देता है क्लोरीन एटम को कि वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसे डिग्रेड कर सके। बट सन तो नेसेसरी होता है ओजोन ब्रेकडाउन के लिए, क्योंकि CFCs को UV लाइट तो चाहिए रिएक्ट करने के लिए, राइट? सो दिस हैपन्स इन स्प्रिंग। अब ये ठंडी में नहीं हो सकता क्योंकि ठंडी में सनलाइट नहीं है। सो दिस हैपन्स इन स्प्रिंग व्हेन सन रिटर्न्स। तो जब सन वापस आता है स्प्रिंग में, सितंबर टू अक्टूबर में, तब ये ब्रेकडाउन का काम होता है। सो दिस इज़
the cold air contained here, this ice cloud formation takes place in Antarctica. ऐसा एक circular motion बनता है जिसको पोलर वोर्टेक्स बोलते हैं. ये बहुत कूल एयर होता है और ये कूल एयर कितनी बार साउथ में मूव करता है तो वहाँ की जितनी भी कंट्रीज़ है वो बहुत ठंडी होती है. ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड पोलर वोर्टेक्स which takes place in Antarctica in winter months. This forms ice clouds which works as surface for the reaction of chlorine and ozone. But sun is necessary for ozone breakdown. So the breakdown takes place in spring only. जब sun वापस आता है तो sun के साथ chlorine react करके ozone को break down करता है. So this is what happens in winter months and spring. बट समर में क्या होता है, एंटार्क्टिका पे से पोलर वोर्टेक्स हट जाता है और यहाँ पे और भी बहुत सारे टाइप की हवा आ जाती है जिसकी वजह से CFC को सरफेस नहीं मिलता और CFC को सरफेस नहीं मिलने की वजह से वो ओजोन से रिएक्ट नहीं कर सकता. तो सरफेस समर जो है वहाँ पे ओजोन होल पूरा डिसअपियर हो जाता है. राइट. नाउ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन? As we know, it shields us from biocidal UV radiations. हमको UV radiations से बचाता है. तो results in an increased penetration of UVB radiation. अगर ओजोन डिप्लीट हुआ तो उसकी वजह से UVB radiation का penetration बढ़ जाएगा. और if a higher loss of ozone can happen, then this can cause UVB and also UVC to penetrate, which is more disastrous. सो टेरेस्ट्रियल लाइफ और एक्वाटिक लाइफ दोनों ही ड्रास्टिकली अफेक्टेड होती है ओजोन डिप्लीशन से. जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ओशन में उनका फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ओजोन डिप्लीशन की वजह से, जो यूवी रेज आता है उसकी वजह से फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी डिक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से दिस कैन लीड टू द डिक्रीज इन फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी. तो पूरा एक इकोसिस्टम जो फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर जू प्लैंक्टन रहते हैं, जू प्लैंक्टन्स के ऊपर दूसरे एनिमल्स होते हैं, वो पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट होता है, फूड चेन अफेक्ट होता है. ठीक है. UVB पेनिट्रेशन इंक्रीजेज द चांस ऑफ कैटरैक्ट एंड स्किन कैंसर. अब UVB अगर पेनिट्रेट होने लगता है तो उसकी वजह से कैटरैक्ट और स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं. इट कैन डिमिनिश इवन फंक्शनिंग ऑफ योर इम्यून सिस्टम. तो आपका इम्यून सिस्टम जो आपको हर तरह के डिजीज़ से लड़ने में हेल्प करता है वो भी ख़त्म हो सकता है. देन इंक्रीज लेवल ऑफ UVB इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस इन मोस्ट फाइटोप्लैंक्टन्स, एज आई सेड, राइट, एंड दिस कैन डिस्टर्ब द होल फूड चेन. राइट. सो दिस इज़ अबाउट द इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन. So I hope this whole topic has been useful to you and you were able to understand everything. But if there is anything that you cannot understand or it was difficult, you can just let me know. So one word, save environment, because we need to rethink that the point is the climate can change, but the question is, can we change? क्लाइमेट तो बदल सकता है अगर हम चाहे तो, पर क्या हम बदलना चाहते हैं? राइट. क्या हम बदल सकते हैं? क्या हम हमारी आदतें बदल सकते हैं? क्या हम AC को यूज़ करना कम कर सकते हैं? क्या हम नेचुरल एनवायरनमेंट में रह सकते हैं? क्या हम हमारे ग्रीन हाउस गैसेस के प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं? तो क्लाइमेट तो बदल जाएगा. सो वी नीड टू रीथिंक ऑन दिस, दैट the climate can change, but can we change? Right. So yeah, with this we end up. Thank you.